We are having some problems in internet. That is why the class is starting late. Yes, continue, please. My short-term goal is focus on my study and focus on study and crack my all examinations, crack my all examination with good marks. Then my long-term goal is making become an entrepreneur and making my own company, and I become as a and I become as a my co-founder of my Prepare करना होगा ना. yes, ma'am. When you're talking about yourself, you need to prepare this. Like, I want to describe myself as a hardworking person. I would like to say that I'm honest. Sentences में frame करके डालना है सब phrases को. ठीक है? About myself, I would like to say that. Describing myself, I would like to say that. As far as my strength is concerned, I would like to say that. I would like to mention that I have always been hardworking. I have always been, मतलब मैं हमेशा से hardworking रहा हूँ. I have always been hardworking. आप बोल सकते हैं कि नहीं? क्या आप ऐसी इंग्लिश बोल रहे हैं कि दूसरा कोई समझ सके आपको, या आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि आप ही समझ रहे हैं? एंड बीबीए में बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि यू नीड टू कन्विंस अदर्स. आपका आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, दूसरों से बात करना, दूसरों को कन्विंस करना. दिस विल बी योर जॉब प्रोफाइल. So the person is trying to check you for your communication skills. Okay. अभी तक हमको सही नहीं मिल पाया है किसी का भी इंट्रोडक्शन. आपको जिन क्वेश्चंस को आपको सीखना है, समझना है, वो क्वेश्चंस ऑलरेडी आई हैव गिवन इट टू यू. अब इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम, अब देखिए, मोर ऑन माई सेल्फ. अपने को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं. If you can see the screen, please read. More on myself. There are some sentences. Hello? हाँ. People online, आपको दिख रहा है मेरा screen? Yes, ma'am. Please read some sentences to describe yourself. My energy allows. Please write down the sentences you see, ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा क्या बोले क्या नहीं बोले. These are the sentences which are going to help you in describing yourself. एक क्वेश्चन था ना, describe yourself. Speak better. स्पीक बेटर का मतलब है, आप इसका मतलब समझते हैं ना, स्पीक बेटर, बेहतर बोलो. एंड these are the questions which will these are the answers to the question describe yourself.
The first sentence छोड़िए ना, बाद में लिखते रहिए. The first sentence which you see is, I am frank, fun-loving, and a happy-go-lucky person. Describe करता है किसी को? I am frank. It means I am assertive. Assertive मतलब अपनी बात को किसी के आगे समक्ष रख पाना. Assert. और BBM स्टूडेंट्स को बिल्कुल चाहिए कि अपनी बात को इस तरह से कहना कि it is convincing. आप अपनी बात कह सकते हैं और परसुएट कर सकते हैं ताकि दूसरा जो सुन करके आपको बिलीव कर सके. फ्रैंक होना, फ्रैंक मतलब रूड नहीं होना. फ्रैंक मतलब be able to say what you want to say, what is required to say. So I'm frank. एक comma है. If you cannot write it. Draw the curtains like, then you can see. Yeah. I'm frank, fun loving. उसको भी हटा दो. ये sentences हमको चाहिए आपके answers में describe yourself में. Speak better का ये last segment है. Speak better जो है day 1 talk time का introduction का. This is the last segment. Speak better. अब इस day 1 खत्म होने के बाद आपको बहुत सारे मटेरियल आपके पास आ जाएंगे अपने बारे में बेहतर कैसे बोल सके, है ना? So please write down the sentence. I'm frank, fun loving. What is the meaning of fun loving? हिंदी में बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल खुश रहता है हमेशा. खुश मिजाज नहीं, खुश मिजाज तो हो गई, मतलब कि किसी भी माहौल को ये खुशनुमा बना देता है. फन लविंग. ठीक है, इसके आने से लगता है कि चलो किसी महफिल में जान आ जाती है. फन लविंग. तो इधर मुंह बना के बैठे हो. एक होता है कोई आया तो फिर सबके चेहरों पे मुस्कान आ जाती है आपको देख करके. इसका मतलब ये हुआ हम फन लविंग. जैसे होली बहुत फीकी फीकी बन रही है, अब ऐसा कोई परिवार आ जाता है, कोई दोस्त आ जाता है या कोई रिलेटिव आ जाता है तो आप सबके चेहरे खिल जाते हैं कि चलो अब तो जमेगी, अब तो जमेगी होली, अब तो जमेगा माहौल. तो फन लविंग का मतलब होता है कि अ वेरी पॉपुलर पर्सन फन लविंग होता है. चेहरे पे मुस्कान आ जाती है सबको आपको देख करके. So I'm frank, fun loving and a happy go lucky person. Happy go lucky मतलब होता है कि जो हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहता है. Somebody who is always in a very positive frame of mind. खुश मिजाज, मिलनसार. हैप्पी गो लकी ट्रिनोमियल है जिसको एक साथ बोलना है. हैप्पी गो लकी नहीं, हैप्पी गो लकी. एक वर्ड है, एक फ्रेज है. ठीक है, हैप्पी गो लकी पर्सन. मैंने पहले ही कहा था कि टॉक टाइम में आपको ऐसे फ्रेज मिलेंगे जो कि लोग आमतौर पे ये सब वर्ड्स यूज कर रहे हैं. आपने में कहीं सुना होगा हैप्पी गो लकी, फन लविंग सुना होगा आपने, है ना? तो ये सब आपको मिल रहा है. कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें. टॉक टाइम का बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपडेटेड वोकैबुलरी सामने रखें ताकि जब आप बोलें तो हाँ लगे कि नहीं, हाँ ये बंदा तो इंग्लिश जानता है. ग्रामर की यहाँ बात ना हो रही है कि इसको इंग्लिश आती है. सो सेंटेंस कैसे बोलेंगे, और यहाँ पर वॉइस एंड एक्सेंट का ट्रेनिंग मैंने कहा था, वो भी इसमें आपको मिल रहा है. VOA मतलब वॉइस एंड एक्सेंट का मतलब होता है सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन, जो कि बहुत ज्यादा कमी है बिहार में. खास करके लोग जो बोलते हैं तो मालूम बाहर वालों को पता चल जाती है that you are from Bihar. Why? Because the way you speak. So you have to speak the globally accepted accent. और कैसे सीखेंगे? टीचर से सीखेंगे. सुनिए टीचर्स कैसे बोल रहे हैं, सुनिए और बोलने की कोशिश कीजिए. I am frank, fun-loving, and a happy-go-lucky person. Please repeat somebody. I am frank, fun-loving, and happy. Fun-loving मैंने नहीं कहा ना. Fun. Fun. तुम जो फ बोलते हो ना, दोनों को लिप्स को सटाते हो. Fun. फ नहीं बोलना है. फल नहीं. Fun. फल नहीं.
Fur. Fun. Fur. Fun loving. Fun loving. बोलो fun. 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 जब तुम fur बोल fur and fur. So I'm frank, fun loving, And happy. and a happy-go-lucky person. चलो speak. I am क्या? Short करो ना. I'm frank. I am फिर लग रहा तुम्हारा. I'm frank. डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या हो रहा है? जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बोलो ना. I'm frank. फ्लुएंसी कहाँ है? फ्लुएंसी ड्रिल है ये. एक साथ बोलना है. I'm frank, fun loving and a happy go lucky person. 1 minute, let him speak. सीखिएगा कैसे? तुम यहाँ वहां मत देखो. या तो हो गया अगर फ्रैंक, फन लविंग, हैप्पी गो लकी पर्सन. बस 3 बार जहां बोले बस याद हो गया. अब देखना क्या? फिर एंड मुझे फ्लुएंसी चाहिए. तुम बोलो. तुम प्रैक्टिस करो इसको. I am frank, fun loving and happy go lucky person. अच्छा जब फा मत करिए हमको. बहुत ज्यादा फल नहीं खाना मुझे. I am frank, fun loving. मानेंगे. Fun. अब बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है. आई एम फ्रैंक, फन लविंग एंड अ हैप्पी गो लकी पर्सन. फिर से बोलो. I am frank, fun loving and happy go lucky person. वेरी गुड. यस यू. नहीं गो के बाद चक्का जाम हो गया. गोलगप्पा नहीं खाया जा रहा. चल कोई बात नहीं. फिर से करो. आई एम खाएगी. आई एम फ्रैंक. फिर से जब तक हो जाता है. नहीं फिर से. फिर से. नो. एक बात कुछ बात नहीं. तो पहले fun loving happy go lucky person. एंड कहाँ चला गया? And a happy go lucky. फिर से. I'm frank, fun loving and a happy go lucky person. गुड. कच्चा पापड़ पक्का पापड़ थोड़ी है कि दिक्कत हो रही है. लिमरिक नहीं है, सेंटेंस है. अटक जाओगे तो 3 दिन तुम फराटे के साथ. 3rd ईयर आते आते तो तुम लोग हमको लगे कि सुना लग रहा है. लगेगा तो अपना ही सेंटेंस है. चलो. फन ऐसे कहें क्या? आई एम फ्रैंक, फन लविंग. गुड. एनीबॉडी ऑनलाइन? इसको तो जमाई आ रही. विनीता श्रीवास्तव, आर यू स्लीपिंग? No, ma'am, it's not like that. Please read the sentence. I'm frank, fun-loving, and a happy-go-lucky person. What does it mean? Tell me. Means frank जो अपनी बातों को अच्छे से किसी के सामने रख सकता हो. fun-loving यानी कहाँ से रख सकता हूँ तुम्हारे? रख सकता हो मैंने कहा. फन लविंग मीन्स जिसके आ जाने से माहौल में एक हैप्पीनेस आ जाए, एक अच्छी सी वाइब आ जाए, गुड वाइब. और हैप्पी गो लकी पर्सन मीन्स आई डोंट नो. Yes. I mean, I don't know how to Happy-go-lucky describe. person is a person who is always happy. A person is always in a Okay. positive frame of mind. A positive person, an optimistic person. Okay, ma'am. All right.
This is answering the question which I gave you. Describe yourself. All right, let us take the second sentence. I am very optimistic. एक मिनट, very को हटा देते हैं. हाँ, very को हटा दीजिए आप. मेरे में हो नहीं रहा है. I am optimistic and to win prizes has always been my ambition. I am optimistic मतलब आप आशावादी हैं. And to win prizes, कामयाब होना. प्राइज के लिए नहीं, रेस, कोई रेस नहीं है. लाइफ की रेस के बारे में बात कर रहे हैं. लाइफ में जो आप जिस दौड़ में हैं, जिंदगी के दौड़ में आप अव्वल आना चाहते हैं और आप प्राइज लेना चाहते हैं, मतलब कि आप कामयाब होना चाहते हैं. यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, राइट? तो एंड टू विन प्राइजेस का मतलब क्या हुआ? अब लिटरेचर में क्या क्या समझाएंगे? इनाम जीतना नहीं, जिंदगी में कामयाब होना. दिस इज लिटरेचर. हमने लिखा है और इसका मतलब अगर तुम पढ़ोगे तो अच्छा इनाम जीतना नहीं. तो समझाना भी पड़ता है कि इसका मतलब क्या होता है. मैं आशावादी हूँ और जिंदगी के दौड़ में, जिंदगी के रेस में कामयाब होना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य. हिंदी लाइनें लिख लीजिए ताकि आपको फिर जब बोले तो ये आप पता चले कि हमको बोल क्या रहा है. कभी लोग रट लेते हैं और रटने के बाद पता ही नहीं चलता है कि क्या मतलब था इसका. हिंदी क्या इसका पता नहीं. कुछ था, मैम बताई थी, याद नहीं आ रहा. तो पूरी लाइन की हिंदी लिख लीजिए. मैं आशावादी हूँ और जिंदगी के रेस में कामयाब होना ही मेरा लक्ष्य. हमेशा से मेरा लक्ष्य रहा है. ऑलवेज बीन लगा हुआ है. has always been my ambition. Please take care of the pronunciation guide. I'm optimistic. मैंने वरी हटा दिया. I'm optimistic. कॉमा कर लीजिए, कॉमा कर लीजिए. जब कॉमा करेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी. I'm optimistic, comma, and to win prizes has always been my ambition. Has always been my ambition. अब मेरी उच्चारण समझिए. I'm optimistic and to win prizes has always been my ambition. Now you read. Want to कहाँ लगा हुआ है? तुम तो शायरी करने लगे, अपना ही वर्ड घुसा रहे. पूरा पढ़ो. इससे क्या होगा? फ्लुएंसी आएगी. चल पढ़. I am optimistic to win prizes. तू कहाँ लगा रहे हो? I am optimistic and टू लगा रहा है ये. I am optimistic and I am optimistic and win prizes. And to win prizes. तुमने खोला नहीं ना अपना ये. That's why you're having problems. I am optimistic and to win prizes has always been my ambition. Good. Yes. घर पे इसको पढ़ना. Yes, sir. अब पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ लेना कि तुम्हारे जबान पे आ जाए. फिर हम ये बोलेंगे tell me something about yourself, शुरू हो जाना अपना. I'm optimistic and to win prizes has always been my ambition.
अब कहीं अटक जाते हो फिर वापस चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि फ्लुएंसी नहीं आ जाती। अब लगे ना फराटे से बच्चा बोल रहा है, फ्लुएंसी आ जाती है। ये ऐसा ये टॉक टाइम है ना, दिस इज गारंटी। अगर तुम इसको 70 डेज का ये कोर्स है और हर लेसन में ये फ्लुएंसी ड्रिल है, तो ये कितने सेंटेंसेस आपके पास जमा हो जाएंगे। अल्टीमेटली करना क्या है, तुमको रटना है, समझना है, बोलना है, प्रैक्टिस करना है। I am optimistic to win prizes. I am optimistic and to win prizes has been my ambition. Has always been my ambition. Has always been my ambition. Has always been my Somebody read from online. अभिनव कुमार पढ़ो। I am optimistic and to win prizes has always been my ambition. Good. Moving on to the third. I'm disciplined. I'm disciplined and I know. ये लंबा सेंटेंस है, जानबूझकर लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाए गए हैं ताकि आपकी फ्लुएंसी ठीक हो जाए। I am disciplined and I know that early to bed is a good maxim. अब इसके मतलब समझिए हिंदी में। I am disciplined मतलब आप बिल्कुल डिसिप्लिन में हैं, घर हो, बाहर हो, दुकान हो, लड़ते झगड़ते दुकान में भी नहीं है, तो डिसिप्लिन घर में नहीं है और डिसिप्लिन कहीं नहीं है। तो आई एम डिसिप्लिन्ड, एक आप अपने आप को एक लेवल दे दिए, एक स्टेटस दे दिए कि हाँ भाई आई एम डिसिप्लिन्ड। और मुझे ये पता है, एंड आई नो, मुझे पता है, आई एम डिसिप्लिन्ड एंड आई नो दैट अर्ली टू बेड इज अ गुड मैक्सिम। इसका मतलब होता है मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मतलब आप अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको घर में बताया गया है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठने के लिए सवेरे सुबह सो, जल्दी सो। ये सब बातें आपको घर में बताई जा चुकी हैं। इस लाइन में आप अपने परिवार की परवरिश सामने ला के रखते थे। एक सेंटेंस एंड आपके अपब्रिंगिंग की पूरी कहानी सामने है। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ और मुझे पता है जल्दी सो के उठना एक बहुत अच्छी कहावत है। ये सब बातें कहाँ सीखे हो? तो अपने पूरे घर की परवरिश इस सेंटेंस में मौजूद है। बहुत कुछ, मैक्सिम मतलब कहावत। वो सुने ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन। तो पूरी नहीं करके मैंने बस आधा पे खत्म कर दिया है। इस प्रॉवर्ब को सब जानते हैं। अभी तुमको बताएंगे ना हम कम्युनिकेशन फेस्ट के प्रॉवर्ब। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन healthy, wealthy and wealthy. Healthy, wealthy. Healthy motor. चलो, so sentence क्या है? I am disciplined and I know that early to bed is a good maxim. पूरी परवरिश सामने है कि आपको पेरेंट्स ने सिखाया है सो के उठो, सुबह उठो, सुबह उठने के जल्दी सो। तो बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आप अपने घर के बारे में भी बात कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या सिखाया है आपको। तो these are such strong sentences कि कहीं भी आप इंटरव्यू में आप बोलना शुरू करेंगे, जीडीज में काम आएंगे, इंग्लिश हर जगह काम आएंगे। चलिए पढ़िए थर्ड। मैक्सिम मतलब कहावत, प्रॉवर्ब।
I am disciplined and I know that early to bed is good max. Disciplined, I know that early to bed is good max. And I know that ये सब जितनी है ना सेंटेंसेस आप बोल करके वीडियो करके हमको भेजिएगा। वीडियो बनाना एक वीडियो बनाइएगा अपना और रीड करिए या बोलिए, आई डोंट केयर। प्रोनाउंसिएशन हम चेक करेंगे कि कौन सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा है कि नहीं। So again, I'm disciplined and I know that early to bed is a good maxim. अपने ग्रुप में तुम लोग ग्रुप में नहीं भेज सकते कुछ क्या? नंबर 4, अब 4 नंबर जो है पहले आप समझ लीजिए। I'm a person of wonderful patience। इसका मतलब हुआ कि आप में इतनी धैर्य है, इतनी सहनशीलता आप में। आप हिंदी जरूर लिखिए। आप में इतनी धैर्य है, इतनी सहनशीलता है, इतना पेशेंस है आप में कि दूसरों को आप अचंभे में डाल देते हैं। भला की सहन शक्ति। There. So I'm a person of wonderful patience. Wonderful का मतलब नहीं होता कि beautiful. Wonder मतलब कि दूसरे अचंभा करेंगे इस बात को लेकर, अचंभित कर देंगे कि भाई सब उसको इतना लोग बोल रहा है, चुपचाप सुन रहे हैं। आश्चर्य में डाल दीजिएगा आप। ये सब बातें कहाँ सीखे हैं? घर से। कोई बोल रहा है तो बहस मत करो, चुपचाप रहो। तो I'm a person of wonderful patience। थोड़ा सा बेहतर बोलना है तो थोड़ा स्टाइल करना पड़ेगा। I am person of wonderful patience. Okay, that's good. Australian. Yes, Australian. ऑस्ट्रेलियन मत सीखिए। सीखना है तो ब्रिटिश सीखिए, अमेरिकन सीखिए। फ्रेंच सीखोगे। हाँ, bonjour, good morning, bonsoir, good evening, au revoir, goodbye। I'm a person of wonderful patience। Person। All right. Okay, that's good. That's right. Yeah, that's right. अभी तो कॉन्वर्सेशन करा ही नहीं आप लोगों को। डिस्क्राइब योरसेल्फ में ही हम अभी गोता लगा रहे हैं। चक्की पीसी का पीसी। Alright, जब आ जाएंगे इंग्लिश तरह तो बता देना। नंबर 5। तो नंबर 4 का हिंदी है कि आप में बला की सहनशीलता है, धैर्य है, सहन शक्ति है, इतनी ज्यादा है कि दूसरों को आप सोचने पर मजबूर कर देंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन। नंबर 5, I do things to the best of my ability। I do things to the best of my ability। पहले इसको समझिए। मैं जो भी करती हूँ, whatever task I take up, उसमें अपना 100% लगा देती हूँ। चाहे वो स्पोकन की क्लास हो या फिर लिटरेचर की क्लास हो या फिर टेक्निकल इंग्लिश की क्लास हो या कोई फंक्शन हो या कुछ पार्टी के लिए कुछ खाना बनाना है या घर के लिए खाना बनाना है या बीबीएम क्लास लेना है। तो जो चीज में टेकअप करते हैं
उसमें अपना 100% लगा देते हैं, इन्हें की कुताही करके है बीबीएम क्लास से छोड़ नहीं सकते, ऐसे टाइम पास क्लास कर रहे थे नहीं. Whatever I do, I put 100% into it. Right? So again, a very strong line. I do things to the best of my ability. I do things to the best of my ability. एक चीज और सिखाते हैं आपको, जो फोनेटिक क्लासेस में मैं जरूर सिखाती हूँ. जब थ बोलते हैं ना, TH, हाँ, थ बोलते हैं, think, thought, right? I think, I thought, जितने भी थ वर्ड्स हैं, थिंग्स, वो आप जानते हैं. थर्मस का थ आप जानते हैं. एक और थ होता है जो आप नहीं जानते हैं, जो आप सीखेंगे तो आप कोशिश करेंगे बोलने की. एंड दैट इज सो इम्प्रेसिव. 1% इस तरह से बोलते हैं. 1% जब हम बोल रहे हैं 1%, I'm talking about people like Shashi Tharoor. He speaks English. He speaks English. वो तो ऑस्ट्रेलियन थोड़ी ना. Sorry, Italian. Forget your English. I'm talking about Amitabh Bachchan. वो था, तो वो लोग थ नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? थ. थ को वो जीभ को बाहर निकालिए. I think, थ नहीं होता है. I think, I thought, टंग को बाहर ले जाओ. think, बोलो. think, I thought, नहीं, तुम्हारा थ हो रहा है. thought, जीभ को दांत से सटा दो, ऐसे करो. think, I thought you will come. I think नहीं, वो बात नहीं है. जिस स्कूल में इसे पढ़ाई जाती है वो स्कूल अटेंड, अगर जिसने किया है वो सिखा सकता है, लेकिन जिसने अटेंड किया वो भी तो नहीं सिखाता है ना. लाइक संजना सिन्हा, सिखाना चाहिए ना. सिखा तो रहे तुम लोगों. I thought, I think, I do things to the best of my ability. I do things to my best of my ability. क्या बहुत जल्दी कुछ बोल दिया ना. अच्छा, ये आईना में देख के करना. आईना में क्या कैसे करोगे? आईना के सामने जाओगे और जीभ को बाहर निकालोगे. I think to the best of my ability. I do things to the best of my ability. प्रैक्टिस कीजिएगा, सुनाइएगा. Things. बस जीभ को बाहर निकाल लेना है और दांत के नीचे रखना है. Things. Okay, guys, then that's all for today. English class should be fun classes. If everybody speaks, I speak, you speak, everybody speaks. And practice whatever you learned today. Right? So recapping, I'm frank, fun-loving, and a happy-go-lucky person. I do things to the best of my ability. I'm a person of wonderful patience. To win prizes has always been my mission. I'm optimistic, and to win prizes has always been my ambition. Now you must, one after the other, connect to the sentences without any comma, full stop. Sentence one, sentence 2, 3, 4, 5. Done? एक साथ लगातार बोलोगे तभी फ्लुएंसी आएगी.
Person. I'm a person of wonderful patience. I am a person of wonderful patience. All right, that's good. Give it up. कितना स्टूडेंट है 19 students.